درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کے بانی مؤسس، اس مسجد کے ذمہ داران، اس مسجد کے کمیٹی اور اس مسجد سے جڑے ہوئے سارے ہی ذمہ داران، امام، علماء کرام اور خطیبان اسلام اور مسجد میں حاضر ہونے والے مصلین، بزرگ، مرد و خواتین، نوجوان، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے توحید کو قبول فرمائے، کتاب و سنت کی محنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے بزنس یعنی تجارت کے دوران ہونے والے 10 گناہ. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 5 حدیثیں سنانے کے بعد یہ 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کے میں سعادت حاصل کروں گا. یہ وہ 5 حدیثیں ہیں جس کی روشنی میں میرے باقی کے 10 پوائنٹ سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی. یہ وہ 5 حدیثیں ہیں جس کی روشنی میں ہم کو حلال اور حرام کے بارے میں تمیز کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ، اور حلال و حرام میں فرق کرتے ہوئے بزنس کرنے کا، جاب کرنے کا، کمانے کا، پڑھنے کا انشاءاللہ ایک شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور حرام کے قریب جانے سے جو خوف ہونا چاہیے ایک مومن کو، ایک مسلم کو، ایک متقی کو، ایک نمازی کو، ایک روزہ رکھنے والے کو، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 5 حدیثوں میں وہ طاقت ہے کہ ہماری زندگیوں کو بدل کر دے انشاءاللہ. پہلی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور جو الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سنن ترمذی کے حدیث نمبر 2422. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، لا تزول قدم ابن آدم، اور ایک روایت میں ہے قدما ابن آدم، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے قدم ہل نہیں سکتے. اور ایک روایت میں ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے کے قدم یعنی انسان کے قدم ہٹ نہیں سکتے، 2 قدم ہٹ نہیں سکتے، دونوں قدم یوم القیامت، قیامت کے دن، من عند ربی، اپنے رب کے پاس سے، حتی یسأل عن 5، کہ جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں. 4 چیزیں ہیں، 5 سوالات. چیزیں کتنی ہیں؟ 4. سوالات کتنے ہیں؟ 5. 4 سوالات، 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ساری عمر کہاں لگائی، کہاں پر تو نے اس کو تباہ کیا، کہاں پر تو نے گنوا دی اپنی عمر. وعن شبابی فیما قبلہ، اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں کمزور کیا، کیونکہ جوانی میں آدمی طاقتور ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر جلنے لگتی ہے طاقت کمزور ہوتی ہے. وعن شبابہ فیما قبلہ، کہاں تو نے اپنی جوانی کو کمزور کیا، شر میں کمزور کیا یا خیر میں. ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ دلوں کو دہلا دینے والا ہے، خوف طاری کر دینے والا ہے. کلمات اتنے بڑے سخت ہیں، جو بلاغت جانتے ہیں، جو عربی ادب جانتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کہاں اس نے اپنے جوانی کو کمزور کیا، کیا تھا. عمر کے بارے میں ایک سوال، جوانی کے بارے
مثال کے طور پہ آج کی مجلس میں جو علم دیا جا رہا ہے، سننے کے باوجود بھی ایک آدمی اگر حرام کام کرتا رہے، حرام کمائی کماتا رہے، تو پھر اس سننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سننے کا فائدہ کیا؟ قیامت کو پوچھا جائے گا کہ تم نے جو سنا تھا اس پر تم نے عمل کتنا کیا؟ اب یہاں پر اس حدیث شریف جو میں نے دو سوالات بتائے ہیں، اس پر تھوڑا سا غور کریں گے تو آگے کی بات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں پر تم نے خرچہ کیا؟ امت مسلمہ کہاں پر خرچ کرنا ہے، تھوڑا سا شعور موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جاتا ہے مرغی کٹانے، تو مرغی کاٹنے والے کو بار بار کہتا ہے برابر دبا ہوا حلال ہے نا، گوشت حلال ہے نا، کیونکہ ماشاء اللہ سے اس بارے میں کافی اچھا اس کو شعور ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بچہ کیا کرتا ہے، ایک کلاس میں اچھا پڑھتا ہے، دوسرے کلاس میں سو جاتا ہے، کیمسٹری کے سبجیکٹ میں ماہر ہو گیا، فزکس کے سبجیکٹ میں سو گیا۔ اگر کوئی انجینئر ہے، وہ زمین کھودنے میں ماہر ہے لیکن بلڈنگ بنانے میں ماہر نہیں ہے تو ادھورا ہو گیا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، وہ مریض کا پیٹ پھاڑنے میں ماہر ہے لیکن اس کے بعد آپریشن کرنے میں ماہر نہیں ہے، تو اس ادھورے ڈاکٹر کو اپنا مریض حوالے نہیں کرو۔ ہمارا جو مالی میٹر ہے نا، لگ بھگ ایسے ہی ہے، کچھ چیزیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے، کچھ چیزیں ہمیں اچھی طرح سے پتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو مکمل کر تاکہ ہم ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنے والا بن جائے کہ اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جا کر کہتے ہیں کیا بھائی مرغی حلال ہے، گوشت حلال ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے مرغی حلال یا حرام کے اگر آپ کے پاس شعور ہے تو مرغی کاٹنے والے کو بھی یہ سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھے آپ کے جیب میں جو پیسہ آیا وہ بھی حلال و حرام سے فرق ہوتے ہوئے آیا؟ کیا آپ کے جیب میں جو پیسہ آیا ہے وہ حلال سے آیا ہے؟ کیا آپ جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میں حلال جگہ ڈالوں یا نہیں ڈالوں، کیا حرام ہے یا کیا ہے؟ آپ کا شعور یہاں پر کام کر رہا ہے، لیکن آپ کے جیب میں جو پیسہ آ رہا ہے اس پر توجہ۔ ہمیں بہت سارے ہوٹل کے مالکین شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ارشد بھائی جب میں امریکہ گیا تو وہاں پر ایک ہوٹل کے مالک نے کہا کہ دن بھر لڑکا لڑکی دونوں نابہن دن بھر بیٹھ کر دونوں میں چیٹنگ کرتے ہیں، ٹائمپاس کرتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، زوجیت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یا نہ شوہر اور بیوی کا یا بہن بھائی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، انجانے ہیں، ڈیٹنگ کرتے ہیں، یہاں پر آ کر ٹائم گزارتے ہیں، لیکن جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو آ کر پوچھتے ہیں حلال ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے تمہاری محبت بھی حلال ہے کیا؟ جیسے کھانے پینے میں حلال و حرام کا مسلمان خیال ہوتا ہے، محبت میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے، کمانے کے راستے میں بھی حلال و حرام ہوتا ہے۔ یہ شعور پیدا اگر ہو تو مکمل مسلم ہے، اگر یہ شعور پیدا نہیں ہو تو ناقص مسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مکمل مسلم، مکمل مومن بنا، ادھورا مسلم بنا۔ ادخلوا فی السلم کافہ ہے یہی۔ اور چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، سنن ابن ماجہ، علماء کرام نے اس کو حسن لے لیا، حدیث نمبر 224۔ انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ عقیدے میں شرک برا، عبادات میں بدعتیں برا، معاملات میں حرام برا، اخلاقیات میں بدتمیزی اور بد اخلاقی برا۔ ایک مکمل مسلمان ہونے کے لیے عقیدے میں شرک سے بھی پاک ہونا ہے، کفر اور نفاق سارے عقیدے کی گندگیوں سے پاک ہونا ہے۔ ایک مکمل مسلمان ہونے کے لیے عبادتوں میں اپنے آپ کو بدعتوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ ایک مکمل مسلمان ہونے کے لیے معاملات میں حرام سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ ایک مکمل مسلمان ہونے کے لیے اخلاقیات کے اپنے اخلاق کو مضبوط کرتے ہوئے بد اخلاقی سے
बिदात से कैसे बचे, मालूमात हो गए तो बचेगा। तो इसी तरीके से मामलात के अंदर भी हराम कामों से अपने आप को बचाना जरूरी है। तो उसके लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा, उसके लिए बयान रखना पड़ेगा, ताकि हम इन ये बयानात क्या होते हैं, ये इल्म हासिल करने का एक जरिया है। इन बयानात के जरिए से हम ये जो फर्ज है वो अदा कर रहे हैं। जैसे आपने नमाज पढ़ी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमको हुक्म दिया अक़ीमुस सलात, अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए नमाज पढ़ी। बिल्कुल ये बयान भी हम क्यों सुन रहे हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने हमको हुक्म दिया क्या करो, पढ़ो। कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्म हासिल करना फर्ज है, तो हम हलाल और हराम में फर्क करने वाला इल्म सीखते हैं, वह इबादत कर रहे हैं। जिस वक्त हम जो बैठे हुए हैं इबादत कर रहे हैं, एक नेकी कर रहे हैं, एक फर्ज अदा कर रहे हैं, अल्लाह इन बंदों को कबूल करता है। तीसरी हदीस, यह हदीस भी बहुत प्यारी हदीस है कि तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2422, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आयतें पढ़ी। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का किस्सा जिक्र किया। सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफ़रा अशअसा अग़बरा यमुद्दु यदैहि इला समा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया, बड़ा लंबा सफर किया। जरा हज के सफर को ताजा करना, कपड़े इहराम के मिट्टी में अटे हुए, अशअसा अग़बरा, बाल बड़ा गंदा है, बाल खुले हुए हैं और कपड़े पूरे मिटियाले हो चुके हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है यमुद्दु यदैहि इला समा, वो अपने हाथों को, हम तो हाथ उठा के दुआ करना ही भूल गया, हाथ उठा के दुआ नहीं करते, तकब्बुर के हालत है, तौबा नहीं, ऐसे बैठे बैठे करते। ख्वाहिशात को दुआ समझ, मुझे ये काम होना है, मुझे ये काम होना है, ख्वाहिशात करते हैं, दुआ नहीं करते हम लोग। तकब्बुर को निकालिए, अल्लाह ताला यमुद्दु यदैहि इला समा, आसमान की तरफ वो हाथ उठाता है, अपने हाथों को उठाकर कहता है या रब, या रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। वो रब रब कहते दुआएं कर रहा है, या रब्बी कहते दुआएं कर रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम, उसका पीना हराम था, उसका खाना हराम था और उसका पहनना हराम था। जो कपड़ा है उसका जो इनकम सोर्स था वो गलत था, जिसकी वजह से उसने वो कपड़े खरीदे, जिसकी वजह से उसने वो पानी खरीदा, जिसकी वजह से उसने शरबत खरीदा, जिसकी वजह से उसने वो खाने खरीदे, वह उल्किया बिल हराम, और उसका जो चमड़ा बड़ा हुआ है, उसका जो गोश्त बड़ा हुआ है, वो हराम खा खा के बड़ा हुआ है। अन्ना युस्तजाबु लह, कहां से फिर दुआ कबूल होगी? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि क़यामत में भी परेशानी, कि आदमी अगर हराम खाएगा तो क़यामत के दिन उसके कदम हट नहीं सकते जब तक कि उन सवालों के जवाब ना दे। क़यामत में परेशानी और दुनिया में भी परेशानी। दुनिया में कैसे परेशानी है? उससे पूछे जिसकी दुआ कबूल नहीं हुई, बीमार है, घर के अंदर तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, दुआएं कबूल नहीं हुई, उससे पूछे कि दुआ कबूल होने का मतलब क्या है। दुआ कबूल नहीं होने के लिए हमें गौर करना पड़ेगा। शिफा अगर देर से आ रही है, इलाज अगर देर से हो रहा है, मुसीबतें बड़ी देर से जा रही है, तकलीफें अगर घरों से देर से जा रही है, इसका मतलब कुछ अस्तग़फिरुल्लाह करने में कमी हो रही है, कुछ तक़वे में कमी हो रही है, कुछ गुनाहों में इजाफा हो रहा है। हाथ उठाकर शायद के दुआएं मांगने के लिए काफी दिन लग गए हैं। कब उठाओगे अल्लाह के हाथ? कब तक अल्लाह को ऑर्डर दोगे दिल से? कल दिलों से ऑर्डर देना ये तकब्बुर वाले लोग करते हैं। हाँ, मैं सोच ऐसा हो जाना चाहिए। कौन है आप? अपने आप को बुझाइए। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि वो आदमी बड़ी तेजी के साथ अर्श को खटखटा लेता है जो अपने आप को गिराना सीखता है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार में क्या होता है? अपने आप को बंदा गिराता है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब, ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, तू ही ने मुझे पैदा किया, व अना अब्दुक, मैं तेरा बंदा।
تیرے وعدوں پر ہوں، عہد پر ہوں، مستطاعت، میری استطاعت نہیں ہے اللہ، میں عبادت کرتا نہیں، مستطاعت، واعوذ بک من شر ما صنعت، میں نے جو برا کیا مجھے معلوم ہے تیری پناہ میں گر گیا، واعوذ بک من شر ما صنعت، واعوذ، پوری لمبی دعا اگر آپ پڑھتے جائیں گے اس کے اندر دیکھیں بندہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے۔ چوتھی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 1513، عن بیع الغرر، ایک لمبی حدیثوں تک پڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے دھوکے والی چیز سے منع فرمایا۔ پانچویں حدیث، میں نے کہا تھا 5 حدیثیں سامنے رکھنے کے بعد 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو 5ویں حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 3488، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام ہے، یعنی اس کا بیچنا خریدنا بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو سگریٹ نہیں پی رہا ہوں اس لیے میں سگریٹ بیچ رہا ہوں، لیکن علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ اپنا پیسہ سگریٹ خریدنے میں لگا رہے ہیں، قیامت پہ جواب دیں گے۔ 400 علماء کرام نے سگریٹ کو حرام قرار دیا، اور آپ اپنے بچوں کو قتل کرنے کے ذمہ داری بن سکتے، وہ کیا پیسٹ اسموکر، جو سگریٹ پیتا ہے جب یہ دھواں نکلتا ہے، اگر وہ بچہ چھوٹا بچہ اس دھوئیں کو سونگھ لیتا ہے، سلو پوائزن بچے کو آپ دے رہے ہیں۔ ایسے کئی جگہ خود سگریٹ پہ لکھا ہوا تمباکو، نشہ بنانے والی چیزیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو سودی کاروبار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے مکان کو ATM کے لیے کرائے پر دیا، میں تو سودی کاروبار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار بھی حرام ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے، کوئی چیز کو حرام ہے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، بیچ کر اس کو فروخت کر کے اس کی قیمتیں کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت ہو ان یہودیوں پر جو ہیلا کر کر کے حرام چیزوں کو حلال کرتے تھے۔ میں ڈائریکٹ تو نہیں کھا رہا ہوں، میں انڈائریکٹلی کھانے کی کوشش کرتے رہا۔ جو چیز آپ کے لیے حرام ہے اس کی قیمت، اس کا خریدنا، اس کا بیچنا بھی حرام، جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے کہ جس چیز کے لیے آپ لے رہے ہیں وہ حلال ہے۔ مثال کے طور پر خون پینا حرام ہے، لیکن اگر آپ کے مریض کو اگر خون خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو بغیر قیمت کے بعد ہوتا نہیں ملتا۔ تو آپ یہاں پر خون پینے کے لیے لے رہے ہیں یا آپ خون کسی مریض کو بچانے کے لیے لے رہے ہیں، یہ کام چونکہ حلال ہے تو آپ کا خون خریدنا بھی حلال ہے۔ لیکن اگر پینے کی نیت سے کر لیتے ہیں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر پینے کی نیت سے خون لیتا ہے تو خون کا خریدنا اور بیچنا بھی حرام، لیکن اگر وہ خون کا باٹل آپ لے کر کسی مریض کو چڑھا رہے اس سے اس کی زندگی مل رہی ہے تو چونکہ آپ مجبور ہیں خریدنا ہی پڑے گا تو آپ کے یہاں پر لینا ایک ہی چیز ہے، انما الاعمال عمل کا دار و مدار نیت پر۔ یہ 5 حدیثوں کے بعد 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کی مساعدت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جب بھی یہ بیان ہو رہا ہے ماشاءاللہ نوجوانوں کی، بزرگوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی ہے، لوگ توبہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ شیخ ہم عقیدے میں اللہ نے ہمیں پاک کیا ہے شرک سے، بدعت عبادتوں کے اندر اللہ نے ہمیں پاک کیا ہے بدعتوں سے، لیکن معاملات میں ہم حرام سے پاک نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس بیان کے بعد شعور آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رجوع ہوں گے اور اپنے معاملات کو صاف کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا پوائنٹ، شروع کے جو 4 پوائنٹ ہیں نا وہ میں آپ کو لگاتار سناتا ہوں، باقی کے 6 پوائنٹ یاد کرنے کا آسان ہو جائے گا۔ تو شروع کے 4 پوائنٹ کو ایک ساتھ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 چیزیں بتائی ہیں اپنے کتاب کے اندر، اور کہا کہ معاملات میں جتنے
4 चीजों में 1 बजे निकलेगी। अल्लाह इब्न कसीर रहमतुल्लाह माहिर है गहराई में जाकर मुताला करने में, गहराई में डेप्थ में जाकर रीजन मालूम करते क्या हिकमतें होंगी, क्यों हराम कहा गया है, वजह क्या होगी। ये 4 चीजों में से 1 चीज रहेगी तो आपके लिए 4 चीजें आसान हो जाएगी, 10 चीजों में से 4 चीजें ऐसी याद हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसको मैंने एक शेयर बनाया स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग पूरे स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम माशाअल्लाह, इस्लाम के तलबा, इस्लामी तालीमात सीखने वाले, तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक शेयर में इसको खोल दिया, एक शेयर बनाया मैंने ताकि याद करने में आसानी हो जाए। मुझे उम्मीद है कि याद है, लेकिन अरबी में मैंने बनाया ताकि अरबी का जज्बा भी आ जाए इंशाअल्लाह। शेयर क्या है, अरबी में जज्बा आएगा इंशाअल्लाह, उसके लिए हमारा और दोस्त करना पड़ेगा। इन्नर रिबा वल मैसिर हरामुन, इन्नर रिबा वल मैसिर हरामुन व मिस्लुल जहालतु वल गरर व मिस्लुल जहालतु वल गरर। कितनी चीजें? 4। क्या वो 4 चीजें जिसकी बुनियाद पर मामलात में हराम का फतवा लगता है? वो 4 चीजें क्या है? याद कर लीजिए। रिबा, रिबा माने सूद, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम, सूद वाली सिस्टम। इन्नर रिबा वल मैसिर, मैसिर अगर आप सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 2 से 21 पढ़ेंगे वहां पर इसका जिक्र मिलेगा। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 9 पढ़ेंगे वहां पर आपको जिक्र मिलेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, शराब तुम्हारे लिए हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, यहां पर होगा मैसिर माने जुआ। तो कोई भी चीज हराम रहेगी या तो सूद की वजह से हराम रहेगी या तो जुए की वजह से हराम रहेगी। इन्नर रिबा वल मैसिर हराम, बेशक सूद, बेशक जुआ हराम है। व मिस्लहु, और इसी तरीके से सिमिलरली, यानी इसी तरीके से क्या क्या हराम है? अल जहालतु वल गरर। जहालत माने, जहालत का मतलब होता है अनक्लियर ट्रांजैक्शन, अननोन, जिसके अंदर भी क्लैरिटी नहीं रहती, एम्बिग्यूटी रहती है, क्लाउडीनेस, क्लैरिटी नहीं मिल रही, मालूमात नहीं है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको के नजरों और आपके जहन और आपके चीज में लाए बगैर, आपके इल्म में लाए बगैर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको मालूम नहीं हो रहा कि हलाल से आ रहा है कि हराम से आ रहा है। क़यामत के मशाइल में से आदमी फर्क नहीं करेगा कि हलाल तरीके से आ रहा है कि हराम तरीके से आ रहा है। अननोन, तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जहाला, जहाला माने जहल से, जहाल। वल गरर, गरर का मतलब होता है कि ऑल काइंड्स ऑफ, जितने भी किस्म के धोखे होते हैं, जितने भी किस्म के अनक्लियर, अनसर्टेनिटी, या इसको आप कहते हैं हाई स्पेकुलेशन, बहुत ज्यादा धोखा हो जा सकता है इसमें, या बहुत ज्यादा खतरा है। यानी मतलब ये है कि आपको ये पता नहीं होता है कि मुझे इसमें ज्यादा फायदा मिल जाएगा या ज्यादा नुकसान हो जाएगा, नुकसान आपके हाथ में आएगा या फायदा उसके हाथ में चला जाएगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलती, इसको कहते हैं गरर। अब इन 4 चीजों में जरा सा आज के दौर में हम अप्लाई कर लेते हैं। रिबा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सूद कुरान मजीद में इसको बहुत बुरे तरीके से कंडम किया गया। ये जो सूद है इंसान का पीछा उठाता है, पीछा उठाता है, दुनिया में कहीं का नहीं छोड़ता, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सही मुस्लिम के अल्फाज में, लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै, और एक रिवायत में व शाहिदी, अल्लाह ताला लानत करे सूद खाने वाला, अपने मासूम बच्चों और जिम्मेदारी जिसकी दी गई उन सबको खिलाने वाला या किसी और को भी खिलाने वाला, लिखने वाला। बातों कहते मैं तो नहीं खा रहा हूं लेकिन मैं लिखता हूं। हमारे अकाउंटेंट, हमारे एमबीए करने वाले, हमारे सीए, हमारे खाता मेंटेन करने वाले, हमारे कंपनी के सीईओ, हमारे कंपनियों के डायरेक्टर्स और हमारे कंपनियों के फाउंडर्स, आप अपनी जिम्मेदारी में जो खाते मेंटेन
جو آپ کھاتے مینٹین کر رہے ہیں سود کے، وہ سب ساودھان ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ حفاظت کرے، اللہ لعنت کرے اس پر جو سود کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، جو سود کے کھاتے مینٹین کرتا ہے، اور اگر ایک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے تو اس پر گواہ بنتا ہے، اگر اس کا معنی شہادہ سے دیا جائے۔ لیکن شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ جو شاہد کا ورڈ ہے مشاہدہ سے کر دیا جائے، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سودی کاروبار مبتلا ہے اپنے خاندان میں اور آپ اپنے دل میں برا نہیں سمجھتے تو آپ بھی اس کے ذمہ دار ہو، آپ بھی اس کے ساجھیدار ہو، دل میں کم سے کم برا سمجھو، یا اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو زبان کھول کر اس آدمی کو لعنت سے اور جہنم سے بچاؤ۔ اگر نہیں بتا سکتے تو کم سے کم دل میں برا جاننا ضرور۔ مشاہدہ بھی اگر کیا اور دل میں اس کے دل کے اندر بھی اگر اس منکر کو ٹوکنے کا یا اس منکر سے نفرت نہیں آئی، اس میں وہ بھی شریک ہو سکتا ہے۔ گناہ کا مشاہدہ کرنے والا بھی برابر کا شریک ہوتا سود کے معاملے میں۔ یہ سود ایسا معاملہ ہے دنیا کے اندر، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز تصور کریے آپ جو نقصان ہے، صحت کا گرنا، دعائیں کا قبول نہیں ہونا، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جانا، معاشرے کے اندر عزت کا گر جانا، بزنس کا گر جانا، بزنس کا ٹھپ ہو جانا، یہ سارے چیزیں آپ لعنت کے اندر مان کے لا سکتے نہ۔ یہ سود اس کا پیچھا اٹھاتا ہے، قبر میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، سود قبر میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمورہ بن جندب کی روایت کے مطابق صحیح البخاری کے اندر ہے، کتاب الرؤیا کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو خواب میں بتایا اس کی تعبیر بتا رہے ہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح برزخ میں الگ الگ جگہ پر چلے جاتی ہے۔ جو آدمی زنا کیا اس کی روح کہاں چلے جاتی ہے؟ کنویں میں سلاخیں لٹکی ہوئی ہیں، ان سلاخوں میں اس کو کھو دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو سود کھاتا ہے اس آدمی کی روح برزخ میں، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد روحیں برزخ میں چلے جاتی ہیں۔ یہ جو برزخ میں ڈالا جاتا ہے کہ خون کا سمندر ہے، وہاں پر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اتنی سڑان ہوتی ہے، اتنی گندی بدبو آنے لگتی ہے کہ وہ آدمی بھاگ کر باہر آنا چاہتا ہے، ایک فرشتہ اس کو پتھر مارتا ہے، واپس جا کر پھر اسی خون کے سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ سود اس کا پیچھا اٹھاتا ہے قبر میں، یہ سود اس کا پیچھا اٹھاتا ہے حشر کے میدان میں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ قیامت کے دن جب یہ آئے گا سود خور اس طریقے سے آئے گا جیسا کہ شیطان نے اس کے دماغ کو چھو کر پاگل بنا دیا، پاگلوں جیسی حرکت کرتا ہے، پاگلوں جیسی حرکت کرتا ہے۔ یہ سود اس کا پیچھا اٹھائے گا اور اس کے دوزخ میں بھی پیچھا اٹھائے گا۔ آگے دیکھیں، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جہنم میں سودخور لمبی مدت تک پڑا رہے گا۔ دوسرے گنہگار اپنی سزا پا کے ہو سکتا نکل جائے، لیکن سودخور لمبی مدت تک جہنم میں پڑا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2274، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سگی ماں کے ساتھ برائی کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ ایک درہم اگر کوئی کھاتا ہے، شراب کے بارے میں مسلمان بڑے کلیئر، دیندار مسلمان بڑے کلیئر، دیندار کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شراب کے قریب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ نشہ ہے اس کا تھوڑا پینا بھی غلط۔ نمازی کو معلوم، دیندار کو معلوم ہے، لیکن یہی دیندار جو شراب سے بچتا ہے، یہ دیندار سودی کاروبار میں بڑی آسانی سے پھنس جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اس کو شعور نہیں۔ درہم ربا، ایک درہم جیسے شراب کا ایک قطرہ بھی غلط، ویسا سود کا ایک درہم بھی غلط۔
2.5% चल जाएगा, गलत गलत हो गया। दिरहम रिबा, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि थोड़ा सूद भी काबिल कबूल नहीं है। 1% भी नहीं, 0.5% भी नहीं, जर्रा बराबर भी नहीं, बाल बराबर भी नहीं, कुछ चांस नहीं। एक दिरहम बहुत कम कीमत, वो तक भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं, किसी भी शक्ल का इंशाअल्लाह इतना। और जब आदमी अल्लाह को तवक्कल करते हैं, हलाल कमाने के लिए निकलता है, अल्लाह ताला उसको पहुंचा देता है। एक वाकया है ईटीवी उर्दू पर, जब मैंने ये गुफ्तगू की थी, बयान किया था, हुसूर में एक मालदार शख्स मुझे मिला। उसने कहा, मौलाना आप लोग 2002 में बयान देते थे ना, तो उस वक्त में मैं आपका बयान सुन के बड़ा गुस्से में आ गया। कहा कि ये आदमी तो इतना मार रहा है, ये आदमी तो हमारे डेवलपमेंट को मार रहा है, ये इतना आसानी से कह रहा है कि सूद गलत है। और हम क्या कहते हैं, हम तो सूदी खरीदे बेचे का हमने कारोबार किया है, और 400 लोगों को हमारे कंपनी से तनख्वाह जा रही है, मैं 400 लोगों को पालने का जरिया बन रहा हूं। ये आदमी कह रहा है कि हराम है, तो मुझे कंपनी बंद करनी पड़ेगी। वो उसने कहा कि मैं आपका गुस्से में आ गया। फिर उसके बाद मैं सफर किया बम्बई के पास कुछ उलमा से मिलने, और जाकर मैंने कहा, क्या वाकई इतनी सख्ती है जैसा कि मदनी साहब बता रहे हैं? क्या वाकई इतनी सख्ती है? वहां के जो उलमाए किराम ने कहा, हाँ हाँ वाकई इतनी सख्ती है। फिर मैं 400 लोगों को पालने का जो जरिया बन रहा हूं, क्या इसकी वजह से अल्लाह ताला क़यामत में मुझे माफ नहीं करेगा? तो उलमाए किराम ने उनको कहा कि अल्लाह ने आपको पालने की जिम्मेदारी कब दी है? आपको अपने आप को जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी दी। क्या बात है? आपको अपने आप को, वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आप अपनी फिक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पालने के लिए काफी है, तुम क्या फिक्र मत करो। किसी और के तकलीफ से बचाने के लिए अपने आप को जहन्नम में बेचना अक्लमंदी नहीं है। अपने आप को जहन्नम से बचाते हुए दूसरों को जहन्नम से बचाने की फिक्र करनी चाहिए। हद से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल जो डिसीजंस होते हैं उससे बचे, बिल्कुल शूर से डिसीजन लीजिए। ये गलत है तो गलत, सही है तो सही, बस। मोमिन कभी ऐसा नहीं होता डबल इजी गोइंग चलता, ये मोमिन का एक्ट क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे बुराई से बचाए। अब ये मैंने दलाइल दी। अच्छा, उसके बाद क्या मसला खत्म नहीं हुआ? हुजूर वाले साहब कह रहे, मैं वापस आया, आकर मैंने कहा जो भी बसें थी सब खत्म, जो पैसा था मैंने वापस कर दिया, सब खत्म। मेरे बीवी के पास कुछ गहने थे, मैंने सोना बेचा, जो हलाल तरीके से मुझे यकीन था कि ये हलाल है, मैंने उसको बेचा। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक बसेस चला करते थे, तकरीबन 400 के करीब होंगे, बहुत बड़ी तादाद। फिर उसके बाद मैंने 1-2 बसेस फिर से लिए हलाल कमाए। कहा कि मौलाना आज से कई साल पहले आपसे मिला था, मैं कई साल टीवी पर देखा था, अब मेरी मुलाकात हो रही है, अब वापस मेरी उतनी बसें आ चुके बल्कि उससे भी ज्यादा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तरका लिल्लाहि शैअन अवदल्लाह, जो अल्लाह के खातिर कोई चीज को छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसको डबल देते। कितना देते हैं? डबल देते। तो मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से एक आदमी को बयान करते हुए सुना कि जब मैं हलाल में आया तो अल्लाह ने मुझे नहीं छोड़ा। अल्लाह की मदद बड़ी वफादार है, अल्लाह वफादार, अल्लाह अपने वादे में सच्चा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे की मदद करके रहे, या तो इस दुनिया में या तो मरने के बाद इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकी करने वालों के मेहनतों को कभी भी वेस्ट नहीं करेगा इंशाअल्लाह। सूद की मिसालें भी देते चले। क्रेडिट कार्ड, उलमाए किराम ने कहा कि ये हराम, क्योंकि आप इसमें साइन करते हैं कि कल के दिन अगर मैं टाइम पर नहीं भर सका पैसा तो मैं इतना सूद देने के लिए तैयार हूं। तो मैं क्या उस चीज पे साइन कर रहे हैं? हराम काम पर, कि कल के दिन अगर नऊज़ बिल्लाह अगर देर हो जाए तो मैं वो आके नऊज़ बिल्लाह ज़िना करने के लिए तैयार हूं। ये मतलब क्या ऐसे साइन मुसलमान कर सकता है? नहीं। लेकिन ऐसे मुल्क, कुछ ऐसे कारोबार हैं बगैर क्रेडिट कार्ड के नहीं होते। अगर आपको फील होता है जैसे ट्रैवलिंग टिकट बनाना है, ऑनलाइन कुछ ऐसी खास किस्म की शॉपिंग है, सर्वर खरीदना है, वेबसाइट खरीदना है, या आप ऐसे मुल्कों में, यूरोप अमेरिका में, कि जहां पर क्रेडिट कार्ड के बगैर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो उलमाए किराम ने
सऊदी अरब के मुफ्तियों ने फतवा दिया वो ये है कि आप उसको डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करें। डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? पहले से आपके पास पैसा होना चाहिए, गोया कि आपने सिर्फ सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया। जैसा कि आप बैंक के जरिए से सैलरी उठाते, सैलरी हलाल, लेकिन उठाते बैंक के जरिए से, तो आपका सोर्स गलत है, लेकिन असल चीज तो आपकी क्या होगी? हलाल। इतनी मजबूरी चल रही है, इस्लाम में मजबूरी इतनी की माफ है। आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। सूद के बहुत सारे हमारे आज के दौर की मिसालें हम आगे और बयान करेंगे आपको। आगे आपके पैसे सूद, रिबा माने सूद, या अरबी में आता है रिबा, अल मैसिर, अल जहाला माने अननोन, कोई भी चीज जहालत वाली, मालूम नहीं, मालूमात नहीं है तो बिजनेस में एंट्री नहीं लेना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। अल गरर, धोखे वाली सारी चीजें। मैसिर, धोखा। अब धोखे की मैं आपके सामने 4 शक्लें बता रहा हूं। पहली शक्ल ये है हलाल है, इसके अंदर कॉम्पिटिशन हलाल है, लेकिन इसको लोग गलत समझते हैं। लेकिन कुछ चीजें हलाल है लेकिन हम उसको क्या समझते हैं? गलत है, जुआ समझ बैठते हैं, जबकि वो जुआ नहीं है। ये भी समझना जरूरी है कि हम हलाल को हराम ना कर, हलाल को हराम को हलाल कर। अगर एक आदमी कहता है चलो तुम तीर मारते हैं, मैं तीर मारता हूं, तो अगर आप सही तीर लगा के हदफ पर, टारगेट पर, मैं आपको पैसे दूंगा, वेडिंग बेट देते हैं। अगर मैं मार दिया टारगेट पर तो आप मुझे देना। 3 जगहों पर इस टाइप की शर्त लगाकर आपस में कंपटीशन करना जायज है। 3 जगह क्या है? सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1700 के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सबक़ा इल्ला फी नस्लिन औ खुफ़िन औ हाफ़िन। 3 जगहों पर इवज़ के बदले में पैसा देकर बेटिंग लगाते हुए कंपटीशन करना जायज है। तीरंदाजी में 2 आदमी घोड़े पर बैठ गए, बोले कि चलो सबसे पहले कौन पहुंचता है अपने टारगेट को, तो ये भी घोड़े पे बैठा, ये भी घोड़े पर बैठा, तीसरा ये भी ऊंट पर सवार है, ये भी ऊंट पर सवार है, और रेस लगा रहे आपस में, और कहते हैं कि अगर मैं पहले तुमसे पहले पहुंच गया तो तुम मुझे पैसे देना, अगर तुम पहुंच गए तो मैं दूंगा। ये एकदम हलाल है। किसने कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 जगहों पर इजाजत दी। तो इसका मतलब ये निकला हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेस करना हलाल है। हॉर्स रेस अलग चीज है। हॉर्स रेस में क्या होता है? कोई और घोड़े पे भागता है, आप पैसा लगा रहे, इसको कहते हैं सट्टा, ये जायज नहीं। आप घोड़े पे बैठे, तेंदुलकर वहां सेंचुरी मार रहा है, या तो बैटर कहता है सेंचुरी मारेगा नहीं मारेगा, पैसा लगाना, ये गलत, इसको कहते हैं सट्टा, इसको कहते हैं जुआ। अगर आप घोड़े पे बैठे हैं, आप ऊंटनी पर बैठे हैं, अगर आप तीरंदाजी कर रहे हैं तो हलाल है। कोई और लगा रहा है तो उसको देखकर अगर आप कर रहे हैं तो जुआ है। दोनों में फर्क समझ में आ गया? दोनों में फर्क समझ में आ गया। दूसरी शक्ल है, अगर आप बेट लगाते हैं, चलो मैं पैसा दूंगा, क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए बचपन में हमने बहुत मात्रा क्रिकेट खेला होगा और सामने वाले को भी हमने हराया होगा, और वापसी में हमने क्या किया? अगर आपकी टीम से हम जीत गए तो आप बेट पहले बांध लेते, कितना? 10 रुपए उस जमाने में। अब आजकल तो 100 में हो रहा होगा, हजारों में हो रहा होगा। ये हलाल है क्या हराम है? हराम। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं है जायज मगर सिर्फ 3 जगहों पर। इसका मतलब है कि चौथी कोई चीज ऐड कर सकता नहीं, कर सकता, कोई भी ऐड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कबड्डी हो, या भागने का कोई काम हो, या क्रिकेट हो, अगर आपस में गेम करते हुए, चलो हम अगर तुमको हरा दिए तो वो पैसे हमारे, अगर तुम हमको हरा दिए तो ये पैसे तुम्हारे, ये बोलना जायज नहीं है, जुआ हो गया। तीसरी किस्म, बगैर किसी पैसे के कंपटीशन करते हैं, चलो भाई रेसलिंग करते हैं, चलो भाई हम देखते हैं कि आम रेसलिंग, चलो हम देखते हैं कि हाथापाई करते हैं, यार देखते हैं कौन ताकतवर है, कौन किसका हाथ गिरा देता है। बगैर पैसे के अगर आप आपस में कंपटीशन करते हैं तो जायज। अपने आप को ताकतवर बनाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर मोमिन बेहतर है कमजोर मोमिन से। तो ताकत के बारे में या इसी तरह कंपटीशन में आगे बढ़ना बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी माल आपस में तय करने के, अगर ऐसा कोई कंपटीशन होता है तो जायज। चौथी किस्म है, चाहे आप पैसा रखे या ना रखे तब भी वहां, मिसाल पासे वाला गेम, गुरु पासे वाला गेम,
दो शर्तें। पहली शर्त ये है जितनी तस्वीरें हैं उस पर आप छुपा दें, जो तस्वीरें होती हैं उस पर आप छुपा दें। दूसरी शर्त ये है कि फराइज नजरअंदाज ना, कम वक्त के लिए, लंबी टाइम माँ बाप बीमार है, दवाई के लिए तड़प रहे हैं, घरों में कमाना है, हलाल कमाएंगे तो बच्चों को, बीवी बच्चों को हलाल जिंदगी नसीब होगी, कर्जों से नजात होगी, कर्जों में आ रहा है तो कर्जों में आ रहा है, कमा रहा नहीं है और चेस खेलने में लगा हुआ है तो हल इतना खेलो। जैसे कि मैथमेटिक्स आपने अलजबरा किया दिमाग तेज करने के लिए, बाद में वो कभी काम ही नहीं आता अगर, लेकिन आपने कई मरतबा अकाउंट्स किए, कई हिसाब किए, कई मैथमेटिक्स किए दिमाग तेज करने के लिए। मैथमेटिक्स अंदाज में जैसा आपने टाइम दिया अपनी जिंदगी में, अगर ऐसा कभी आप टाइम देते हैं चेस खेलने के लिए तो शैतान लंबा लंबा खेलकर उसको पूरा करियर बना लेना, पूरा पीछे रख देना, इस्लाम को छोड़ देना, दावत का काम छोड़ देना, इल्म अमल दावत सबर इन सब चीजों को छोड़कर ये सब चीजों के पीछे लगना, ऐसे सारे इल्म से बचना चाहिए जो हमें इल्म अमल दावत और सबर में पीछे कर दे। ये भी दरमियाने चलते, दरमियाने चलते। आपके सामने अब एक मसला आता है कॉम्पिटिशन, किरात। आजकल होते बहुत सारे किरात के कॉम्पिटिशन, नज़म के कॉम्पिटिशन, तो आप अपने बच्चों को ले जाकर उसमें इन्वॉल्व कराते हैं। वो लोग कहते हैं 100 रुपए नहीं, भाई 100 रुपए किसके, क्या आप ये 100 रुपए में से इनाम देने वाले बच्चों को? हाँ, बच्चों को मत देने, जुआ है। आप अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन में मत भेजिए। अगर आपको पैसे लेकर कॉम्पिटिशन में शरीक करवाया जा रहा है, जुआ है, पैसे जमा कर रहे हैं, उसमें से जो जीता उसको थोड़े पैसे दे रहे, जो नहीं जीता उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जुआ हो गया। हाँ, नहीं सिर्फ पोस्ट में नहीं दे रहे, वो जो बुक है ना, वो जो बुक है उसके पैसे क्लियर आ जाए तो ठीक। वो जो बुक है वो बुक पढ़ेगा तो बच्चा एग्जाम देगा ना, वो बुक के पैसे हैं। आप कहीं और खरीदिए, हमारे पास खरीदिए, कोई बात नहीं। जो यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है बुक के लिए है, कंपटीशन में शरीक होने के पैसे नहीं है, तो ये जायज। कभी दावत के दौरान चैलेंज करते हैं कि अगर कोई ये साबित कर दे तो उसको मैं इतना पैसा दूंगा, ये भी जायज कहा उलमा इकराम ने, अगर एक तरफा शर्त। अब आगे बढ़ते हैं बात तीसरी, जहालत। जहालत का माना है अननोन। आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर हमारे बहुत सारे तौहीद परस्त भाई भी ये बिजनेस में आगे चले जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, आजकल मैं देख रहा हूँ नेट के ऊपर देख रहा हूँ, आप पे करना चाह रहे हैं पेपाल से या पेटीएम से या आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से, या बाकायदा ऑप्शंस के तौर पे आ रहा है। और एक खास किस्म की करेंसी होती है जिसका कहते हैं इंस्क्रिप्शन, एक इंस्क्रिप्शन अलामती करेंसी, वर्चुअल करेंसी, जिसका तसव्वुराती करेंसी है। और इसके जो माहिर है मुंदिर कहफ, इस फील्ड के करेंसी के माहिर दुनिया में कौन है? मुंदिर कहफ। वो कहते हैं दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट ने इस करेंसी को अप्रूव नहीं किया, इस करेंसी को अप्रूव नहीं किया, मतलब ये निकला कभी भी इसकी वैल्यू जीरो हो जा सकती है। और अगर अचानक कोई गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर ले तो अचानक वो करोड़पति भी बन जा सकता है। इस्लाम ऐसे चीजों की इजाजत नहीं देता जहां पर हाई लेवल की इतनी यानी कि नॉन क्लैरिटी, मिस क्लैरिटी या इतना जहालत पाई जाती है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसे सारे लोगों से बचना चाहिए। गलत के लिए बेहतरीन सारे इंश्योरेंस, उसमें यकीन नहीं होता है कंपनी को फायदा ज्यादा हो रहा है या आपको ज्यादा फायदा हो रहा है। अचानक एक्सीडेंट हो गया तो आपको अचानक बहुत सारा माल मिल गया, यानी खतरा और फायदे की क्लैरिटी इसमें नहीं होती है, तो इसमें से गलत हर किस्म का जो स्पेकुलेशन होता है इन सब चीजों से बचना है। आजकल शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजों में गलत, खासतौर से जो वर्चुअल किस्म के प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज, जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो आला किस्म का दौर में जाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग जो है ना नहीं पढ़े लिखे तरीके के दौर में जाते हैं। किसी भी किस्म का धोखा, उससे बचना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर धोखे वाले चीजों से मना किया। पांचवा धोखा पार्टनरशिप में हलाल होना, ये शायद हमारे सोसाइटी के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप तो हम आयोजित करते रहते हैं। एक का पैसा, एक की मेहनत, मुबारका कहते हैं। मुशारका का मतलब होता है दोनों की मेहनत, दोनों का पैसा, या दोनों की मेहनत पैसा दे किसी का, मुशारका, मुबारका। पार्टनरशिप में भी हलाल और हराम होता है। पार्टनरशिप में मिसाल के तौर पे जो प्रोडक्ट में आप जब पैसा लगा चीजों का है, आजकल तो आर्टिफिशियल चावल चाइना से आ रहे हैं, लोग
جلدی مالدار بننے کے چکر میں ایسے بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو حکومت سے یا شریعت سے ٹکراتے لوگوں کے لیے نقصان والے، خاص طور سے میڈیکل لائن والے لوگ ایسے ایسے پروڈکٹس بچوں میں پھیلا دیتے ہیں، بچوں کی صحت گر جاتی ہے کیونکہ وہ بڑے سستے میں مل جاتے ہیں لیکن بکتے بڑے مہنگائی ہیں، لوگ جلدی میں پیسہ لا رہے ہیں۔ پروڈکٹ حلال ہونا چاہیے، اگر پروڈکٹ حلال نہیں ہے تو آپ کا پارٹنرشپ وہاں پر کرنا حرام میں شریک ہونے کا برابر۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 2، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں مدد کرو، تقوی کے کاموں میں مدد کرو، بر کے کاموں میں مدد کرو، لیکن تم برائی میں اور بغاوت کے کاموں میں دوسرے کی مدد مت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ پروڈکٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ سیکنڈ چیز، جس کمپنی میں آپ شریک ہو رہے ہو، کمپنی نے اگر سودی قرضہ لے کر شروع کیا تھا تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ میں سودی قرضے سے توبہ کرو، اس کے بعد میں شریک ہوں۔ نہیں میں سودی قرضہ پہلے لیا تھا، نہیں وہ ابھی تک چلے گا، آپ توبہ کریں گے، بولیں کہ میں آج سے جیسا کہ انفوسس نے کہا میں ہم نہیں لیں گے، لیکن انفوسس دوسرے اصول میں آ کر پھنس جاتا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے جو ہمارے بھائی وہاں انفوسس میں لگائے ہیں وہ 5واں اصول بھی پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اعلان کیا، ہمارے بہت سارے مسلمان ایک اصول پورا ہوتے سمجھتے حلال ہے، کئی اصول ہوتے ہیں۔ ایک نماز، خالی ایک آدمی رکوع کرتے نماز ہو جاتی ہے، سجدہ کرے کا دیکھنا ہے، تکبیر تحریمہ ہے کرنا، تو پوری نماز برابر ہونے کے جیسے رکوع کافی تھی نا، تو ایک چیز حلال کا اعلان کرتے ہیں لوگ جلدی میں دھوکے میں، آج کل کے دور کا دھوکا ہے کہ کوئی کمپنی اچانک کہتی ہے کہ میں سودی قرضہ نہیں ہوں گیس سے، تو فوراً سمجھتے لوگ حلال ہے۔ اور بھی چیزیں دیکھنی پڑے گی، اور بھی چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ کمپنی نے سودی قرضہ لیا ہے، شروع کرنے کے لیے آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ کمپنی نے ایکسپینڈ کرنے کے لیے سودی قرضہ لیا ہے، آپ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کمپنی نے یا کسی نے بھی کہا آپ 1 لاکھ دے دو، مہینے کو 10,000 پکا سمجھو، ایسا پکا بولنے والا حلال نہیں ہے، جس بیس پہ دینے بولنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے آپ کے 10 لاکھ، آپ کے 1 لاکھ ہے نا، اس کیپٹل کا 10% مہینے کو آ جائے گا، تو یہاں پر پرسنٹیج کس پر فکس کیا جا رہا ہے؟ کیپٹل کا، تو یہ جائز نہیں۔ پروفٹ پر پرسنٹیج فکس کرنا جائز ہے، یعنی جو بھی پروفٹ آئے گا اس کا 10% بولنا جائز ہے۔ کیپٹل کا 10% ہوتا سود ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو اچانک 10 لاکھ پروفٹ آ گیا اور آپ نے خرچہ کیا تھا کتنا؟ 1 لاکھ، تو 1 لاکھ کا 10% کتنا ہوا؟ 10,000۔ 10 لاکھ کا 10% کتنا ہوا؟ 1 لاکھ۔ تو اسلام جو بتا رہا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے یا سود خور جو بتا رہا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے؟ اسلام کو بتا رہا۔ تو اگر کوئی آپ کو سود فکس کر دے یا کوئی یہ کہے آپ کو میں نقصان ہونے نہیں دوں گا، نقصان ہوگا ہی نہیں، اور کوئی گارنٹی لیتا ہے کہ وہاں پر شریک نہیں ہوگا، کہاں شریک ہوگا؟ نفع اور نقصان کی بات ہو، کیپٹل پر ریشو فکس نہ ہو، پروفٹ پر ریشو فکس ہو، کمپنی کا پروڈکٹ حلال ہو، کمپنی کی شروعات میں سودی قرضہ نہ ہو، کمپنی کے توسیع اور ایکسپینڈ میں سودی قرضہ نہ ہو، تو یہ پارٹنرشپ بھی حلال ہے۔ شیئر مارکیٹ کے بھی شیئر آپ کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ اب شیئر مارکیٹ آ کر ہندوستان میں کہاں پر پھنس رہا ہے؟ آخر کا ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے ریسیویبلس۔ ریسیویبلس کا مطلب ہوتا ہے ہر کمپنی کے کچھ مال لے جاتے ہیں لوگ، دینے میں ڈیلے پیمنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کمپنی کیا کرتی ہے؟ RBI کے رول کے مطابق ہے کہ ڈیلے پیمنٹ اگر ہوتا ہے اور بینک کے ذریعے سے آتا تو سود لگ کر خود بخود آتا ہے۔ یہ کمپنیاں کیا کرتے ہیں؟ اس کو لے کر اپنے کمپنیوں میں ملا لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو جب پروفٹ دیتے ہیں تو کیا دے رہے ہیں؟ وہ سود والا جو مکس ہے وہ بھی دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہندوستان میں لوگوں نے فتویٰ نکال دیا 2.5% حلال، 5% حلال، کیونکہ وہ مکس ہو گیا نا، یہ بعد میں نکال لو۔ تو سعودی عرب کے علماء کرام نے کہا کہ ایسا بعد میں نکالنا جائز نہیں ہے، پہلے ہی صاف کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ شیئر مارکیٹ کے ایسے کمپنی جو 95%، 97% پار ہو چکے ہیں، ابھی 2% یا 3% باقی ہے، آپ پورے بزنس کے ٹیم بنا کر بزنس میں پورے جائے اور جا کر کہتے ہو وہ بھی چیز پاک کر دو تاکہ ہم اپنا پیسہ لگا۔ جب تک وہ پاک نہیں کرے ہم اپنا پیسہ نہیں لگا سکتے۔ چھٹواں اصول یہ ہے، بڑا پیارا اصول ہے، حلال ہوتی ہے کوئی بھی چیز کچھ شرطوں کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز حلال علماء کرام جب بھی کہتے ہیں تو آپ دیکھیں شرط بھی لگاتے ہیں، یہ شرط، یہ شرط، یہ شرط، یہ شرط۔
बगैर शर्त के वो चीज को हलाल। नमाज पढ़ना जायज है कि नमाज पढ़ना अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई 11 बजे दिन के 11 बजे अगर ज़ोहर की नमाज पढ़े तो नमाज हो जाती, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसने शर्त पूरी नहीं की, वो क्या टाइम से पहले उसने नमाज पढ़ी। चीज अच्छी है, काम अच्छा है, लेकिन उसने कंडीशन पूरे नहीं की। एक आदमी ने नमाज पढ़ ली, लेकिन उसके कपड़ों में गंदगी लगी हुई, उसको मालूम है, तो जानते पूछते कि आदमी नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब क्या है? चीज सही है तो उसके कंडीशन भी पूरे होना जरूरी। इसको कहते हैं हलाल बिशुरूत। इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह से बड़े माहिर। जब भी कोई चीज हलाल कहते हैं ना, तो शेख साथ में शर्तें बताए थे, पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी। शेयर मार्केट में 6 शर्तें लगाकर उलमाए किराम ने कहा हलाल। चेन मार्केट, चेन बिजनेस 5 शर्तें लगाकर उलमाए किराम ने कहा हलाल। इंस्टॉलमेंट 10 शर्तें लगाकर उलमाए किराम ने कहा हलाल। शर्तों का मतलब क्या है? अगर ये कंडीशन पूरे नहीं हुए तो वो चीज हलाल नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है? हराम। अब सवाल जो उठता है, आम आदमी को 10 शर्तें, 5 शर्तें, 6 शर्तें बिजनेस करते वक्त पर याद होना जरूरी है क्या? मुश्किल। आम आदमी का आलिम को भी उस वक्त याद आना कोई जरूरी नहीं। इस वजह से सऊदी अरब के उलमा ने हल निकाला। वो हल क्या है? शरिया एडवाइजरी बोर्ड, इस्लामिक शरिया एडवाइजरी बोर्ड। बड़ा प्यारा काम कर रहा है सऊदी अरब में। मोहम्मद बिन सऊद अल हुसैनी, शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, अमेरिका से इन्होंने इकोनॉमिक पर पीएचडी किया और फिर वापस आकर मलिक सऊद और शेख बिन बाज के पास पढ़ के काफी कई साल मेहनत करने के बाद दोनों रूप पर महारत हासिल की। और मैं शेख से जब मशवरे लेता हूँ, माशाअल्लाह बहुत प्यारे प्यारे बात देते हैं, मैं उनसे इल्म हासिल करता हूँ, उनसे मसले पूछता हूँ। शेख रहनुमाई करते हैं हिंदुस्तान के हालात के सामने बताता हूँ, तो बड़े प्यारे मशवरे देते हैं। अल्लाह ताला जज़ाक खैर अता फरमाए। halal2.com के फाउंडर, कल मुलाकात करी, शेख से इल्म हासिल करी, इंग्लिश भी आता है शेख को, अरबी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेख ने क्या किया? सऊदी अरब में शरिया एडवाइजरी बोर्ड बनाई और राजी के पास गए और जाकर उन्होंने कहा, आप इतने नेक इंसान जानते हैं, राजी के फाउंडर कितने नेक इंसान, बड़े नेक हैं, लेकिन उनके कारोबार में कुछ चीजें हराम वाले मामला आ चुके थे, जिसकी वजह से उलमाए किराम और राजी से दूर हो जा रहे थे। तो ये गए, दूर हो जाना आसान है, लेकिन ऑल्टरनेट दे देना और अच्छा है। हराम कह दिए आसान, लेकिन अगर ऑल्टरनेट देते हैं तो बड़ी बात, मुतबादिल देते हैं तो बड़ी बात है। मोहम्मद बिन सऊद अल हुसैनी ने कहा, शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने जो रूल्स बयान किए उसकी रोशनी में शरिया एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे हम, और उसकी रोशनी में हम जाएंगे और उलमा की टीम तैयार की होगी। वो टीम तैयार करके और राजी से मिले, बड़ा नेक इंसान है राजी, जो है शेख राजी, उन्होंने कहा मेरी पूरी कंपनी को बात करने के कितने साल लगते, कितने उलमा चाहिए, कितनी तनख्वाह चाहिए, सब फिक्स। 3 साल लगे। आज मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, शेख साद अल खतलान जो सऊदी अरब के 40 टॉप के मुफ्तियों में से मुफ्ती है, उन्होंने अपने ट्विटर पर ये लिखा, राजी के इंस्टॉलमेंट हलाल है, राजी के शेयर हलाल है, राजी के साथ मामले करें, सब चीजें हलाल है, इंस्टॉलमेंट हलाल है, और वहां के जितने भी ट्रांजैक्शन सब हलाल है, आप तुम ज्वाइन हो सकते हो। मतलब यह है कि 3 साल की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फल मिल गया कि इससे पहले जो हराम और हलाल जो मिक्स था, राजी आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक हो चुका। ये देखकर कौन आगे बढ़े? राजी अल-मिलाद, बिल्कुल मिलाद, सऊदी अरब का मशहूर एक बैंक है, पाक है, उसके शेयर भी खरीद सकते हैं आप, उसका इंस्टॉलमेंट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उलमाए किराम ने कहा ये भी हलाल। अब ये देखकर 2 और आगे बढ़े, अल-अहली, सऊदी अरब का मशहूर बैंक अल-अहली, उलमाए किराम ने कहा अब उसे लेकर 3 साल लगेंगे उसको पाक होने के लिए, क्योंकि पाक होना आसान नहीं होता। मुर्गी अगर गंदगी खा ले तो उसको पाक करने के लिए क्या करते हैं आप? उसके पैर को रस्सी बांध के अच्छे गिरा देते हैं 1.5 दिन तक, 1-2 दिन तक उसको अच्छा खिला सकता। कुछ गंदी चीज खाली होगी तो 1.5 दिन जल्लाला ऐसे सारे को बंद कर खिलाते ताकि तो 2 दिन लगते, लेकिन ये बैग को या गलत चीजों को पाक होने के लिए कितना साल लगता है? कम से कम 3 साल। तो कहा कि अल-अहली और अल-जज़ीरा ये दोनों की अभी पाकी की शुरुआत हुई है, लेकिन फिर भी हलाल है।
अगर ये शरिया एडवाइजरी बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर आ जाए, हमारे कई मुसलमानों का फायदा होगा। कई लोग मुझे फोन करते हैं इंस्टॉलमेंट, अब लोग छोड़ा खरीदना है, जब हमारे पास चलो, अब मैं एक जगह जाऊंगा, 2 जगह जाऊंगा, मुझे दूसरे भी तो काम करना है, हर दिन जाके स्कोडा के शोरूम में तो ले बैठ सकता हूँ। अगर शरिया एडवाइजरी बोर्ड रहेगी तो मैं नाम डालूंगा, भाई हैदराबाद का थाना एरिया का जो है ना, उससे हमारा टैप हो चुका है, वो हमारा, अब वहां जाकर मुझे बात करना पड़ता है, भाई स्कोडा के भाई ये ऐसा करो, तो वो क्या करते हैं, हमारे खातिर एग्रीमेंट हमारे हिसाब से बनाते हैं, तो ऐसा करके हलाल रास्ते से लाके ही ट्रांजैक्शन करते हैं। दीनदार लोग, बड़े मालदार के साथ में दीन का जज्बा भी है, वो लोग थोड़ा टाइम निकालो, हम टाइम निकालते हैं, जाते हैं, उनको बनवाते हैं, और वो जब देखता है कस्टमर बहुत आ रहे हैं तो हमारे रूल मान लेते हैं। अगर हम इंडिविजुअल जाएंगे तो वो अपने रूल बदलने के तैयार हैं। तसव्वुर करो, अगर हम पूरे एडवाइजरी बोर्ड के साथ अगर जाएं और कहें कि मुसलमानों के 2000 लोग, 3000 लोग, 5000 लोग, 2 लाख लोग खरीदने रेडी है, तो क्या हमारे रूल नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मेरी गुजारिश है मुसलमान नौजवानों से, आपने MBA पढ़ा, आपने CA की पढ़ाई की है, आप CEO है, आप डायरेक्टर है, आप मैनेजर है, ये उलमाए किराम का जो मैदान है फतवा देना, उससे जरा हट जाइए। ये कारनामे करीब मोहम्मद बिन सऊद अल हुसैनी ने, आज देखते हैं फेसबुक के अंदर उलमा से ज्यादा नौजवान फतवे दे रहे, सीरिया के बारे में, दिमिश्क के बारे में, ऐसा लग रहा है कि उलमा से ज्यादा जज्बा नौजवानों में आ गया। अभी नौजवानों से पूछते हैं कि आप क्यों ये मसलों में गुफ्तगू कर रहे हैं? उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में अगर मसला आता तो पूरे अहले बदर को जमा कर देते थे, तब जाके मसले का हल करते थे। ये उलमाए किराम की पूरी टीम जमा होकर भी फैसला नहीं ले रही, लेकिन इंडिविजुअल जिसके हाथ में भी सैमसंग मोबाइल, एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, वो समझ रहा मेरी जागीर है, तो फतवा भी मेरी जागीर है। ये सब चीजों से हट जाइए। आपको अल्लाह ने इल्म दिया है कॉमर्स, आपको अल्लाह ने जो केमिस्ट्री का इल्म दिया है, आपको अल्लाह ने जो फिजिक्स का इल्म दिया है, आपको अल्लाह ने जो मैनेजमेंट का इल्म दिया है, मोहम्मद बिन सऊद अल हुसैनी की तरह अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है, उस माल के जरिए से आप दूसरे जगहों पर बिजनेस करना छोड़िए। शरिया एडवाइजरी बोर्ड वाला बिजनेस डालिए, बिजनेस का बिजनेस, खिदमत की खिदमत। एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर मत करिए, मस्जिद की निगरानी में कहीं बाहर, ये मस्जिद जैसे मस्जिद है, इस मस्जिद की निगरानी में एक छोटा सा एक सेंटर खोलिए बाहर मस्जिद के करीब, और कहिए भाई ये मस्जिद जिम्मेदारी लेती है, और यहाँ के मालदारों को कहिए पैसा जमा करो, जिसको इंस्टॉलमेंट में चाहिए वो हमसे ओनर, ये रूल्स जो शरिया में जो रूल्स है, ये रूल्स पूरे करते हुए इंस्टॉलमेंट के जो हलाल तरीके, उस तरीके से आप गाड़ी दीजिए। ग्राइंडर, किचन के बहुत सारे आइटम्स हमारे खवातीन खरीदना चाहती है, बहुत सारे गाड़ियां हैं, बहुत सारे कार हैं, व्हीकल्स है, बहुत सारी चीजें हैं, आप बड़ी खिदमत कर सकते हैं। लोग मस्जिद की तरफ शौक से भी आएंगे कि भाई इस मस्जिद के अंदर दुनियावी एतबार से भी काफी लोगों को रहनुमाई मिल रही है, हलाल और हराम की तमीज मिल रही है। इस तरीके से मस्जिद का पोजीशन भी यही हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी कमाई में बरकत आएगी, क्योंकि आपने खिदमत भी की है और आपने लोगों, आपने हलाल बिजनेस का रास्ता भी अख्तियार किया। शरिया एडवाइजरी बोर्ड के जो रूल्स है, वो जो कंडीशन है, जो बल्कुल बिलाल वाले कायम कर रहे हैं, जो अल्लाह वाले कायम कर रहे हैं, उनको लाइए, लाकर उसको हिंदुस्तान में फिट करिए। इंशाअल्लाह खिदमत की खिदमत, दावत की दावत और हलाल कमाई होगी इंशाअल्लाह। नौजवानों से गुजारिश ये है कि वो मैदान में जाकर फुटबॉल से खेले, मुसलमानों के खूनों से खेलना छोड़ दे। ये फतवाबाजी, ये उलमा से पहले फेसबुकों पर जाकर गुफ्तगू करना, क्योंकि जब काम नहीं होता है तो आदमी क्या करता है, बड़े बड़े मसलों में गुफ्तगू शुरू कर देता। काम करना है अगर आपको, तो आप इदारेदारी, सेक्टरदारी और उलमा की निगरानी, मस्जिद की निगरानी में एक कोई ऐसा कारनामा करिए कि जिसके जरिए से लोगों को हराम से बचाइए। इंशाअल्लाह बड़ा ख्वाब मिलेगा, बड़ी रहमतें आएंगी हमारे मुसलमानों की इंशाअल्लाह। तो ये हलाल शर्तों के साथ हलाल बड़ा नफीस है, बड़ा प्यारा इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसके अंदर ताकत और हिम्मत अता फरमाए। 7वां नुक्ता है, कोई भी चीज हलाल होती है, बिजनेस जब करना है तो चंद कंडीशन पूरे करना है और चंद हराम चीजों से बचना है। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ते हैं तो वजू करना भी जरूरी, बगैर वजू की नमाज होती नहीं होती, तो कहते हैं शर्त पूरी करना जरूरी है। नमाज के दौरान खाना खा सकते हैं नहीं, कुछ चीजों से बचना जरूर, कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है, कुछ चीजों से बचना जरूरी। बिजनेस में भी ऐसे ही
कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है, कुछ हराम चीजों से बचना जरूरी, तब जाके बिजनेस पूरा होगा। मिसाल के तौर पर शर्तुल इनेकाद, शर्तुल सिहा, शर्तुल निफास, शर्तुल वुदू। मतलब क्या है? एक आदमी ने प्रोडक्ट बेचा, वो प्रोडक्ट ही हराम था, तो क्या बिजनेस शुरू हुआ? बिजनेस भी शुरू हुई। प्रोडक्ट हलाल था, अब वो बिजनेस कर रहा है, पहली शर्त पूरी हो गई, चलो बिजनेस प्रोडक्ट हलाल है, लेकिन वो उस प्रोडक्ट पर या उस लैंड पर कोई और भी मालिक था, पार्टनर से रजामंदी लिए बगैर कोई अगर हलाल चीज बेच दे तो क्या बिक जाती है? नहीं बिकती। वो पार्टनर को भी इत्तला मिलाना, रजामंदी लेना जरूरी है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 29, अन-तवाल, रजामंदी के साथ काम होना। प्रोडक्ट हलाल भी है, पार्टनर राजी भी है, लेकिन अब उसके बाद आगे की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई। वो क्या है? ऐप निकल आ गया उसके अंदर, ऐप निकल आ गया तो कहते हैं जब ऐप निकला तो कस्टमर को राइट है कि आपकी चीज को वापस करना। इसको कहते हैं शर्तें पूरी होना जरूरी है। और उसका क्या रुकावट है? हराम चीजों से बचना जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक आदमी बाजार का बिल्ली खरीद के लाया, अब बिल्ली हलाल है कि खरीदना हराम है? हलाल है। बाद इसको कहा, बाद इसको हराम कहा, लेकिन हदीस में क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्ली का बेचना और खरीदना से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन पर्शियन क्या है, दरियाफ्ते सीरियन क्या है, एक क्या खरीद के ला रहे हैं, बचना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, ये मकरूह है, ये हराम है, ये उलमा इतना बाद में बताएंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। मोमिन क्या करता है? रुक जाता है। चीज को देखना पड़ेगा, बिला जरूरत क्या खरीद रहे, अगर खेतों की हिफाजत के लिए खरीद रहे, जानवरों की हिफाजत के लिए या शिकार के लिए तो जायज, लेकिन अगर उसके साथ वॉकिंग करने के लिए खरीद रहे तो नाजायज। आपको देखना, प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। ओल्ड सिटी में हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो पीतल के, कांसे के, अलग अलग मटेरियल के बुत बना है, बुत को ले जाकर पूजा करने वाले गैर मुस्लिम, और उन बुतों को बेचने वाले मुसलमान। वो जो खैर उम्मत थी, वो जो खैर उम्मत थी जो बुतों से बचाने के लिए, शिर्क से बचाने के लिए आई थी, वो खैर उम्मत शिर्क के बुत बना कर दे रही। जो भी चीजें शिर्क वाली चीजें, हराम वाली चीजें, बिदात वाली चीजें हैं, उन सब का बेचना। मैं तो बिदात नहीं कर रहा हूँ, मटेरियल खरीदना बेचना आपके लिए जायज। मैं तो शिर्क नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मटेरियल बेचना खरीदना जायज है? तो आपके लिए इल्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद का नुकता है, 8वां नुकता, कुछ चीजें एक्सटर्नल तौर पे, बाहर के तौर पे हराम होती, कुछ चीजें अंदरूनी तौर पे हराम होती, उसका भी ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर वजू नमाज से बाहर का है, क्या अंदर का हिस्सा है? बाहर का हिस्सा है। सजदा नमाज के अंदर का हिस्सा है, बाहर का? अंदर का। अगर वजू पूरा ना हो तब भी गलत। एक आदमी ने वजू अच्छा करके सजदे बराबर नहीं किया, एक सजदा कम कर दिया, तो नमाज हो जाएगी नहीं। तो बाहर का पार्ट भी पूरा होना अच्छा है और अंदर का पार्ट होना भी जरूर। बाहर का पार्ट मतलब एक आदमी मस्जिद में बैठकर बिजनेस कर रहा है, हलाल है कि हराम? तो फिर मस्जिद से सारे कैलेंडर निकाल दीजिए जो कैलेंडर के नीचे किसी कंपनी का एडवर्टाइज होता है। मस्जिद में मार्केटिंग करना जायज नहीं है। मस्जिद के बाहर एक बोर्ड लगाइए, उसके ऊपर आईना लगाइए, उसके ऊपर ये सारे एडवर्टाइज के काम अगर होते हैं तो ठीक है, वरना मस्जिद को दूर रखे तो ही बेहतर है। जुमा की नमाज को जा रहे हैं और अदा हो रही है, तो इमाम साहब मेंबर पे ठहर के आपका वादा है कि बाहर कोई खरीदो फरोख्त करना जायज है? खरीदो फरोख्त भी जायज नहीं है, उस वक्त पर कोई और महफिल भी जायज नहीं है, उस वक्त पर उलमाए किराम ने कहा निकाह की महफिलें भी जायज नहीं। इसका मतलब बाहर वो प्रोडक्ट हलाल होगा, लेकिन एक्सटर्नल नमाज तक है, इसको कहते हैं बाहर की चीज। एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल चीज, एक होता है अंदरूनी चीज। प्रोडक्ट है हराम है या सूद वाला है तो फिर अंदर की चीज भी गलत है। 9वां नुकता, हलाल को हराम नहीं करना और हराम को हलाल करना, ये भी बड़ा अहम है। कुछ चीजें हलाल होती है लेकिन उसको हम हराम समझ जाते हैं, कुछ चीजें हराम है लेकिन उसको हम हलाल समझ जाते हैं। मिसाल करके आप सोना खरीदने गए, सोना से दोस्ती कहती है आइटम दे दो, मेरे घर में आधा सोना और रखा हुआ है, मैं लाकर दे दूंगी। ख्वातीन बहुत करते हैं ऐसा, मान ये तो सोना है और थोड़ा है, मैं लाके बाद में दे दूंगी। अब वो भरोसे पैसा जाएगा नहीं, क्योंकि सोने में क्या लंबी ऑन द स्पॉट होना है, बराबर बराबर होना है, कभी बेसी नहीं, जब का जब होना है, बराबर बराबर
साहब जो फला मालदार के घर में गए और मालदार के जो है इनकम सोर्स में हलाल और हराम दोनों भी मिक्स है, तो गया कि आलिम साहब आपके पेट में क्या गया, हराम गया, तो मैं ऐसे आलिम साहब के पीछे नमाज क्यों पढ़ूं? वह आपको मालूमात थी सऊदी अरब में शेख मोहम्मद बिन सालेह अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह ने फतवा दिया इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़े को कोट करते हुए कि अगर किसी का इनकम आपके बारे में आपको शक है कि वो हलाल हराम का मसला है, अगर आप खा लेते हैं तो उसका हराम आपको नहीं लगेगा, वो उसके लिए हराम है, आपके लिए, क्यों आपको क्या था तोहफा, आपका जो सोर्स है वो हलाल हराम है, तोहफा हलाल हराम है, दावत दे रहे दूसरे को हलाल है कि हराम है, मुसलमान के 6 हुकूक में से मुसलमान का हक है, वो जो आपका सोर्स है वो हलाल है, उसको जो सोर्स से आया था वो क्या था, उसके लिए गलत है, आपके लिए नहीं। हम लोग क्या करते हैं, तहारत के मसलों को लाकर माल के मसलों में फिट करते हैं, कयास करते हैं, कयास करना जायज नहीं। तहारत में होता है, एक जग में एक बड़ा एक बकेट है, एक आदमी ने जग में पानी लिया तो उसके अंदर कोई गंदगी पेशाब के कपड़े दे दिए बकेट या जग में, तो हम बोलेंगे भाई ये पानी में चूंकि गंदगी दे दी से वजू नहीं करें, ये तहारत के मसले अलग, माल के मसले अलग, उसके लिए जो हराम होता है आपके लिए हराम होना बात होता जरूरी नहीं है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पड़ोसी, उसके माल में इनकम सोर्स में गड़बड़ थी, वो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला को उसने तोहफा भेजा, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला ने वो हलवा खा लिया, लोगों ने कहा इसकी आपका पड़ोसी है, उसके पड़ोसी में जो कमाई है वो गड़बड़ है, आपने क्यों खाया? तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि उसको सजा मेरा मजा, क्या बोले, सजा उसको है, मजा मेरा है, मुझे जो बुनियाद पे दे रहा था वो हलाल था, अगर वो ऐसा किया है कि वो गलत करा तो उसका जिम्मेदार वो है, मैं उसका जिम्मेदार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की दावत अटेंड करते थे, क्या यहूदियों का पूरा इनकम सोर्स हलाल था, गारंटी पे ले सकता है? नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी है। माले गनीमत जंगों में लूटते थे सहाबाए किराम, वो माले गनीमत था किसका? गैर मुस्लिमों का रहता था उस जमाने, क्या वो गैर मुस्लिमों का पूरा माल हलाल था इसलिए माले गनीमत लूटते थे? इब्ने जिब्रील हफिज़हुल्लाह ने ये मिसाल देकर समझाया, तुम्हारे दिमाग में अगर इश्काल आता है तो माले गनीमत जो अल्लाह ने हलाल किया ना उसको सामने रखकर समझ जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम जो बादशाह तोहफे भेजते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट कर लेते थे, क्या उनका पूरा इनकम सोर्स हलाल रहता था क्या उस जमाने में? नहीं था। तो इस वजह से हलाल को हराम मत समझो, हराम को हलाल मत करो। सूरे नहल 116 वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुम हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, अपनी तरफ से नहीं, कुछ बेच कर बोलो, कुछ बुनियाद पर बोलो, कुछ शरई दलील पर बोलो, अकल में आ रहा है तो मत बोलो, अकल हमारे मामला पूरे उलमा तक पूछते कि अकल की बुनियाद पर हलाल हराम चल रहा। 10वां पॉइंट बताकर मैं आपको बात खत्म कर देता हूँ। 10वां पॉइंट ये है कि नबी अकरम कर्ज के मसले, इसमें हलाल भी है हराम भी है। अगर एक आदमी कर्जा लेता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बीवी और इसी तरीके से जो उसका खास रास्ता दोस्त है उन सबको बता दे, गवाही जिसको दिला सकता है दिला दे कि मैंने फला से कर्जा लिया है, उसको पैसे वापस करना है, मैंने वो फला जो जमीन है, वो जो फला सोना है, उसको दिमाग में रखते हुए बैकअप के तौर पे कर्जा लिया है, कल की अगर मैं मर जाऊं तो बेचकर उसको अदा कर दो। क्यों? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स के बारे में पता चला कि कुछ दिरहम कर्जा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। इसका मतलब क्या निकला? नमाज जनाजा जो मशहूर इमाम होता है उसको नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया गया। कोई आम आदमी नमाज जनाजा पढ़ाएगा अगर कोई कर्जा रखकर मर जाएगा, इसका मतलब कर्जा लेना जायज है, लेकिन उसको बाकी रख के मर जाना ऐसा नहीं जाता। जाने किसी का हक है, बंदे का हक है वो। और सूदी कर्जा अगर रखकर बगैर सूदी कर्जे की बात है, बगैर सूदी कर्जे की बात, कर्जा लिया तो उसके नामे अमल लटकते रहेंगे जब तक कि वो कर्जा अदा ना हो जाए। सिर्फ बगैर सूदी कर्जा तो कर से खरीद के ले जाना। अब यहाँ पर लीज के मसले बताता हूँ। लीज में हलाल भी है हराम भी है। हमारे लोग क्या करते हैं, दुकान देते हैं,
اس سے 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں 10 سال کے بعد دکان واپس لے لیتے ہیں، اس کے 10 لاکھ روپے اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ جائز نہیں؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ 10 لاکھ کے بدلے میں اس آدمی نے فائدہ اٹھایا جو اس نے کرایہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرضہ دے کر، اب اس کو لیز کہتے ہیں، رہن کے مسئلے کی یہ ہیلا بازی ہے، یہ اصل میں ہے قرض، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ پیسوں کی ضرورت ہے، اس وجہ سے اس نے کرایہ معاف کیا۔ وہ گلی میں چلنے والے کسی کو بھی فری میں دکان دیتا، یہاں پر دکان کیوں دیا؟ کیونکہ اس نے قرضہ کیا۔ تو قرضے کی بنیاد پر اگر آپ نے اس کے کرائے کو لینا چھوڑ دیا ہوا آدمی، تو گویا کہ یہ معاشرے میں کفر بن رہا ہے، گویا کہ نیت کے قائم مقام ہو گیا، گویا کہ شرط کے قائم مقام ہو گیا۔ اب اس کا صحیح شکل کیا ہے؟ آپ جب 10 لاکھ واپس دیتے ہیں تو اس کے کرائے کاٹ کر 7,50,000 روپے ہیں۔ یہاں کے معاشرے کے حساب سے اتنا کرایہ جو بھی کرایہ ہوتا 7,50,000 روپے جتنا بھی ہوتا اتنا کرایہ کاٹ کر آپ دیں گے حلال۔ ذرا سا فرق ہو گیا، ذرا سا فرق میں بات، یہ 10 اصول تھے، ذہن پر رکھیں۔ تھوڑا ٹائم میں ڈیٹیل میں لیا، تفصیل سے سمجھایا، پاس بھی بول سکتا تھا، 15 منٹ میں بول کے بھی آپ کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا چھوڑ دو، اجازت دی آپ اس میں تفصیل سے بتا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ سب کو حلال و حرام کے علم میں مضبوط کر دے، عمل میں مضبوط کر دے، دعوت اور اسلام